नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्या केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं सुर्खियों से। बीदर के 3 तालुकों में 19 ग्राम पंचायत उपचुनाव के तारीखों की घोषणा। ब्रिम्स अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। कर्नाटक के सीएम बोम्मई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। देवेगौड़ा मोदी की मुलाकात से जनता दल बीजेपी समझौते की चर्चा। दिल्ली की सीमाओं से लौटना चाहते हैं ज्यादातर किसान, आंदोलन पर किसान नेता। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अब 15 दिसंबर से नहीं शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर के 3 तालुकों के 19 ग्राम पंचायतों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। यह बात आज जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने एक बैठक के दौरान बताई। इस संबंध में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 19 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29 ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಾವು ಈಗ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ತಾಲೂಕುಗಳ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಒಟ್ಟು 3 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 19 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು 29 ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನಾಂಕ ಸೋಮವಾರ 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂದು ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂಥ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ದಿನ 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಉಮೇದುದಾರರು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 20th ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮತದಾನದ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತದಾನದ ದಿವಸ 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮರು ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಏನಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ ಎಣ್ಣಿಕೆ ನಾವು 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ದಂದು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ದಿವಸವನ್ನೇ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ದಂದು. ಇದು ಹುಲ್ಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿದೆ. ಹುಲ್ಸೂರು, ಗೋರ್ಟಾ, ತೊಗಲೂರು ಈ 3 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 52 ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಕಮಲ್ನಗರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್, ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪ, ಬಾಲ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ 19। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। वह कॉलेज के अस्पताल परिसर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। बता दें, डॉक्टर कोविड महामारी के दौरान दिए जाने वाले इंसेंटिव को जारी करने को लेकर मांग कर रहे हैं। यह प्रदर्शन राज्य भर में किया जा रहा है। ये हमारा डे 3 है स्ट्राइक का। हमारा इंडेफिनिट स्ट्राइक चल रहा है। जब तक जो हमारे डिमांड्स है वो पूरे नहीं हो जाते हम तब तक करते रहेंगे। हम डीसी से भी मिले कल जाकर, उन्होंने भी हमें अश्योर किया कि हमारे को मतलब हमारे जो भी डिमांड्स है वो पूरे करे जाएंगे। बट ऐसे रीअश्योरेंसेस हमें पहले भी दिए गए हैं, जब तक कि हमारे को नहीं मिल जाते हम तब तक बैठेंगे स्ट्राइक पे। हमें जो हायर अथॉरिटीज़ है वो हमें प्रेशराइज़ कर रही है कि हम इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ करें, पर हम स्टिल बैठे रहेंगे जब तक कि हमारे सारे डिमांड्स जो हम बार बार बता रहे हैं, हमारे 3 मेजर डिमांड्स हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तब तक हम इस इंडेफिनिट स्ट्राइक के ऊपर बैठे रहेंगे। पूरे कर्नाटका में ये स्ट्राइक चल रही है, यही 3 डिमांड्स है और हर कोई इसी को लेके पूरा बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डेडिकेटेड है। जब तक ये नहीं होता हम तब तक स्ट्राइक करते रहेंगे। जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने बेंगलुरु बीदर उड़ान दिसंबर के दूसरे सप्ताह से फिर शुरू होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि अभी संबंधित विभाग द्वारा कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है।
ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ GHAL ಅಂತ ಗೈಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಚೀಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅರುಣ್ ಬೆಹಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೀಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರು ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೂಜೆಟ್ನ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಫ್ಲೈಟ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಸರ್, ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಸತ್ಯಾಸಂಶವನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬುಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್. ಅವರಿಂದ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ಅದು ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಟ್ರೂಜೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಜೊತೆ, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ. अब देखते हैं समाचार राज्य के। सीएम ने कहा कि क्रिसमस और नए साल के जश्न पर प्रतिबंध के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लॉकडाउन जैसे उपायों पर अनावश्यक चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, मैं 2 दिसंबर को दिल्ली जा रहा हूं, जिस दौरान मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलूंगा। स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को बूस्टर खुराक के प्रशासन के बारे में चर्चा की जाएगी, जिन्होंने लगभग वैक्सीन की पहली और बाद में दूसरी खुराक ली थी। तुमकुर के 2 नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले केरल के 15 छात्रों को कोरोना संक्रमित पाया गया। इन सभी छात्रों को आइसोलेट कर दिया गया है। सिद्धगंगा नर्सिंग कॉलेज में 8 और वरदराजू कॉलेज में 7 छात्रों ने संक्रमण का अनुबंध किया है। परीक्षण में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोविड के लिए तुमकुर और उसके आसपास नर्सिंग कॉलेजों के 200 छात्रों का परीक्षण किया। कॉलेजों में अधिकांश छात्र केरल से हैं। सकारात्मक परीक्षण करने वाले सभी छात्र नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में पढ़ रहे थे। कॉमेडियन कुणाल कामर अगले 20 दिनों में बेंगलुरु में होने वाले उनके शो के स्थल को बंद करने की धमकी के साथ साथ बैठने की विशेष अनुमति से इनकार करने के कारण रद्द कर दिया गया है। कामर 1 से 19 दिसंबर के बीच कई दिनों तक बेंगलुरु के जेपी नगर में एक कार्यक्रम स्थल पर कुणाल कामर लाइव नामक एक शो करने के लिए तैयार थे। कॉमेडियन के करीबी सूत्रों ने कहा कि जबकि उनके शो अन्य राज्यों में इसी तरह के कारणों से रद्द कर दिए गए थे, यह पहला मौका था जब बेंगलुरु में किसी शो को रद्द किया गया है। कामराज दूसरे कॉमेडियन हैं जिन्होंने गुजरात के मुनव्वर फारूकी के बाद पिछले 5 दिनों में बेंगलुरु में अपना शो रद्द कर दिया है। जेडीएस सुप्रीमो HD देवेगौड़ा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की और अटकलों को बल दिया कि क्षेत्रीय पार्टी और भाजपा के बीच 10 दिसंबर के विधान परिषद चुनावों के लिए चुनाव पूर्व ट्रक हो सकता है। मंगलवार दोपहर को मोदी की गौड़ा से मुलाकात हुई। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए गौड़ा ने कहा कि उन्होंने मोदी के साथ आगामी MLC चुनावों पर चर्चा की। मैंने मोदी से कहा कि जनता दल और भाजपा के राज्य स्तर के नेताओं को गठबंधन बनाने पर फैसला लेना है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमिट कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमिट कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद दिल्ली की सीमाओं से जाने के मामले पर किसान संगठनों में दो अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। ज्यादातर किसान संगठन चाहते हैं कि दिल्ली की सीमाओं से किसानों को लौट जाना चाहिए। एमएसपी की गारंटी को लेकर अपने राज्यों में जाकर आंदोलन करना चाहिए। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आंदोलन का स्वरूप बदला जाए। ज्यादातर पंजाब के किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं से जाना चाहते हैं। हम सब लोगों को एक मत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 4 तारीख की बैठक में दिल्ली की सीमाओं से जाने के लिए एक मत फैसला लेने की कोशिश करेंगे। कुलवंत सिंह ने कहा कि हम जब भी उठेंगे साथ में ही उठेंगे। उन्होंने कहा कि अब कुछ ही किसान संगठन हैं जो रुकना चाहते हैं। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ का असर दिखने लगा है। ओमिक्रॉन के चलते 5 दिसंबर से बहाल होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर लिया गया फैसला टालना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अधिकारियों को कहा कि इस फैसले को फिर से देखें। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से आज जारी नोट में कहा गया है, बदले वैश्विक परिदृश्य के चलते स्थिति पर गहराई से नजर रखी जा रही है और सभी हितधारकों से चर्चा के बाद इंटरनेशनल यात्री सेवाओं को फिर से प्रारंभ करने का फैसला लिया जाएगा और इसे उचित समय पर सूचित किया जाएगा। यूपी के हमीरपुर जनपद से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था बलरामपुर जिले का मुस्लिम युवक। युवक ने जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी भी की। पहले से 3 शादियां भी कर चुका था आरोपी युवक। पीड़ित लड़की के परिजनों द्वारा 2018 में दर्ज हुई थी पीड़िता की गुमशुदगी रिपोर्ट। पीड़िता से बच्चे पैदा करने के बाद पीड़िता को बेचने के फिराक में था आरोपी युवक। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मौदह कोतवाली में मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मौदह कोतवाली अंतर्गत एक महिला द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 4 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, जिससे शादी हुआ उसने अपने को हिंदू बताया करके शादी किया था। इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर पहलू की इसमें गंभीरतापूर्वक छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 4 शादियों के सर मामला है इसमें, क्या 4थी शादी इसमें? जांच के दौरान जितने भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई। झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस ने अवैध विस्फोटक कारोबार मामले में इंटरस्टेट गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने करीब 21,000 जिलेटिन की छड़ें और करीब 20,500 डोनेटर बरामद किया है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2 दिन पूर्व रविवार की रात दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र स्थित मोहल पहाड़ी गांव के समीप एक पिकअप वैन पलट गया था। यह पिकअप वैन नारियल से भरा था। जब उसे नजदीक से देखा गया तो नारियल के नीचे भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखे मिले। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विस्फोटक को जब्त कर थाने ले आई। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। इस अनुसंधान में इंटरस्टेट गैंग द्वारा अवैध विस्फोटकों की सप्लाई करने के मामले का खुलासा हुआ। बरामद विस्फोटक में 20,641 जिलेटिन की छड़ें और 20,150 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। यह सारा विस्फोटक पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के रानीगंज के जावेद द्वारा बीरभूम जिले के मुरारोई थाना क्षेत्र के राजाग्राम के बुकाई के पास भेजा जाना था। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यह एक इंटरस्टेट गैंग है जो अवैध रूप से विस्फोटक को सप्लाई करता है। पुलिस हर पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता राहुल कुमार वर्मा की रिपोर्ट। 11 को एसपी साहब के निर्देश पे और गुप्त सूचना मिली हुई थी कि दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग जो है कि NH 114A में बारूद का जखीरा एक गाड़ी पार होने वाला है। उसी के क्रम में थाना प्रभारी के नेतृत्व में जगह जगह पे वाहन चेकिंग लगाया गया था और उसी के आलोक में एक तेज गति से टाटा पिकअप वैन भाग रही थी और जो अनियंत्रित होकर के पलट गई और उसमें हम लोगों को बारूद का जखीरा प्राप्त हुआ है और उसी में कांड दर्ज किया गया है। क्या है और कितनी मात्रा में? इसमें करीब 100 कार्टून है जिलेटिन और पावर जेल है 100 कार्टून और करीब
6 बंडल जो है कि डेटोनेटर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं होने के संबंध में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बात करते हुड्डा ने सवाल किया कि क्या ये सरकार सच्चे और शुद्ध मन से कह रही है। उन्होंने कहा, अगर सरकार के पास किसान आंदोलन में जान की कुर्बानी देने वाले करीब 700 किसानों का आंकड़ा नहीं है तो मैं सरकार को यह आंकड़ा देने को तैयार हूँ। सरकार सभी दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि दे और किसान परिवारों को मुआवजा व नौकरी दे। मंगलवार को एक 15 साल के छात्र ने अपने मिशिगन हाई स्कूल में गोलियां बरसा दी। घटना में 3 किशोरों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। ओकलैंड काउंटी शेरिफ कार्यालय ने कहा कि 8 घायलों में एक शिक्षक सहित 7 अन्य हैं। घटना तब हुई जब कक्षाएं चल रही थी। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक 16 वर्षीय किशोर, एक 14 वर्षीय और एक 17 वर्षीय किशोरी शामिल हैं। घायलों में से 6 की हालत स्थिर है और 2 की सर्जरी की जा रही है। हमले को लेकर कारण स्पष्ट नहीं हो सका। देखते हैं समाचार फिल्मों के। शाल्मी खोलखड़े ने फरहान शेख के साथ लिए 7 फेरे और फिर किया निकाह। जाने कौन है सिंगर के हस्बैंड। खेल जगत के समाचार। ओमिक्रॉन नामक एक नए कोविड संस्करण का पता चलने के बाद से अफ्रीका दौरे पर खतरे का बादल मंडराने लगा है। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका का दौरा करना है। बीदर के 3 तालुकों में 19 ग्राम पंचायत उपचुनाव की तारीखों की घोषणा। प्रिंस अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। कर्नाटक के सीएम बोम्मई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। देवेगौड़ा मोदी की मुलाकात से जनता दल बीजेपी समझौते की चर्चा। दिल्ली की सीमाओं से लौटना चाहते हैं ज्यादातर किसान, आंदोलन पर किसान नेता। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अब 15 दिसंबर से नहीं शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।